5 enemy aircraft. So he actually, when he joined the he was in England. He was studying in England. स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे वो. और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो ही वॉलंटियर्ड. ही वाज जस्ट 17 years old at that time. उन्होंने वॉलंटियर किया और उन्होंने रॉयल फ्लाइंग कोर RFC में ज्वाइन किया. रॉयल एयरफोर्स तब तक नहीं बनी थी. इट वाज नॉट कॉल्ड द रॉयल एयरफोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ही जॉइंड द रॉयल फ्लाइंग कोर. दे ऑल हैड आर्मी रैंक्स. तो ये लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट इंद्रलाल रॉय. And he started flying for the Royal Flying Corps. In his very first mission, जो पहला उनका sortie था over enemy lines, एक जर्मन एयरक्राफ्ट ने उनको मार गिराया. And his injuries were so grievous. क्रैश जो उन्होंने किया तो उनका इंजरी इतना ज़्यादा हुआ था कि he was brought back. ये लोग फ्रांस में लड़ाई हो रही थी and he was brought back to the British side of the enemy line of the lines and put in a French mortuary. मतलब मॉर्ग में डाल दिया गया उनको. But somehow he was actually not dead. तो मरे नहीं थे वो. So he woke up after some time in the morgue and उनको दरवाजा वगैरह सारा बंद था and he started banging on the door. और किसी तरह वो जो मॉर्ग के जो स्टाफ थे they were like terrified कि ये पता नहीं भूत आ गया क्या हो गया है. But they opened the door and this man came out. ये मॉर्ग से निकल के आए. And then he was of course shifted to an army to a military hospital. वहाँ पे करीब 6 महीने उनको लगे to recover from his injuries. But 6 महीने के बाद World War I फिर भी चल रहा था उस टाइम पे. He volunteered again to come back to flying, Royal Flying Corps में. उनको initially कहा गया कि आप नहीं जा सकते because of your medical unfitness and injuries and all that. But again वही power of mind वाली बात है. He had thought that he would come back and fly fighters again for the Royal Flying Corps, and that is exactly what he did. He came back, he flew again, and जब वो वापस आए, it seemed as if he was a man in a hurry, and he shot down 10 enemy aircraft. Sorry, he shot down 10 enemy aircraft one after the other in a span of 13 days. 13 दिन के टाइम के अंदर उन्होंने 10 enemy aircraft को मार गिराया. And he was one of the most, at that point of time, उनकी age at that point of time was 18 years. 18 साल के थे. He was still short of his 19th birthday. 10 enemy aircraft मार गिरा चुके थे. And he was one of the most feared pilots of the Royal Flying Corps at that point of time. Come on, Arjit, that's so nice to know, yes. Right? And 18 years, I think that's really too much. Can you very briefly touch about ATC? Yes, sir. Right, most of us will not really know the intricacies of the air traffic controller. Some of you, the older ones or not so young ones sitting in front, may have read this book, Airport, The Airport by Arthur Haley. So that tells you what the complexities of the ATC are. He will cover in 1.5 minutes about the ATC. So air traffic control is an extremely challenging job. When I joined the Air Force, I got into the air traffic control. I told you the secret beforehand that I wanted to play cricket for services mainly. So if I had joined the flying branch, I would not have been spared to go into ATC. Yes. So I joined the ATC instead. Instead of the flying branch, I joined the ATC, which was equally part of air operations. And ATC में I'll just narrate one small thing which happens every day on a daily basis. 2 squadrons होते हैं at any airbase, 2 fighter squadrons, each having around 18 aircraft each, 18 aircrafts होते हैं. And every morning, the first detail of the morning takes off at around 7 o'clock in the morning. 7 बजे करीब पहला detail airborne होता है. And about 9 aircraft from one squadron, 9 aircraft from the other squadron, 18 एयरक्राफ्ट एक साथ टेक ऑफ करते हैं. एंड दीज 18 एयरक्राफ्ट्स गो, अगर मतलब इफ इट इज पीस टाइम, दे विल गो इनटू देयर प्रैक्टिस. जो उनका सेक्टर दिया जाता है उनको, वहाँ पे जा करके दे कैरी आउट देयर एक्सरसाइज फॉर द डे, which could be a low level navigation sortie, it could be a 2 versus 1 combat sortie, whatever जिसके लिए वो practice कर रहे हैं, वो sortie के लिए वो जाते हैं. So that sortie is limited to 45 minutes, and each of these fighter aircraft will have fuel for 45 minutes only.
क्योंकि उससे ज़्यादा अगर फ्यूल होगा उसमें तो द एयरक्राफ्ट विल बिकम सो हेवी कि इट कैन नॉट बी मैन्यूवर्ड, उसका मैन्यूवरेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा. एंड सो दे हैव दैट मच फ्यूल ओनली. उस फ्यूल के अंदर उनको सॉर्टी कंप्लीट करके वापस आके लैंड भी करना है. And when they come back to land, all 18 of them will come back at the same time because 18 of them got airborne together almost. 30 seconds के बाद एक aircraft take off करता है. So all of them will be finishing their fuel at more or less the same time. जब ये वापस आ रहे होते हैं ये, उनके हर एक के cockpit में एक लाल red warning light जलती रहती है, and there is an audio warning which comes into their helmet, into the earpiece, which says low on fuel, low on fuel, low on fuel, land. अगर land नहीं करेंगे तो crash करेंगे because they'll run out of fuel. So the challenge of the ATC controller who's sitting in that tower is to get back all these 18 aircraft together at intervals of around 30 seconds or 45 seconds के उसमें. जो civil का air traffic controller होता है, he has his own challenges, but he has the luxury of asking people to orbit over a reporting point. वो एयरपोर्ट के चारों तरफ रिपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे उनको ऑर्बिट कराते रहते हैं और एक एक करके लैंडिंग क्लियरेंस देते हैं. वन एयरक्राफ्ट कम्स इनटू द सर्किट, लैंडिंग सर्किट एंड लैंड्स. यहाँ पे एयरफोर्स में वी डोंट हैव दैट लग्जरी. ऑल 18 एयरक्राफ्ट हैव टू बी रिकवर्ड एट द सेम टाइम. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आस्किंग एनीवन टू गो अराउंड और होल्ड और एनीथिंग बिकॉज़ ही विल जस्ट run out of fuel and Thank you, Vikram and Arjun. Thank you. Just take 30 seconds. Okay. So the challenge is to get back all of them together, and this happens twice a day for the air traffic controller. One in the morning detail, one in the afternoon detail. And इसमें कितना tension होता है, कितना challenge होता है, anyone who's actually gone through it only will understand. And he still got his hair black, so that's all right. Okay, we go to the last question of mine to Professor Gupta, and that is about her latest book, The Leifeng Pagoda. I'll ask you, ma'am, please cover in 2 minutes. One, the plot that you have woven in this, and also the deaths, the mysterious deaths of the scientists, which you've researched into. Yes. And also the assassination attempts on our ex-Prime Minister Jawaharlal Nehru and the POWs of Okay, so all in 2 minutes. I'll start quickly. So when I was writing this book, all my books are based on 100% real events. तब मैंने एक डिफेंस एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि करीब 9 से 10 हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट और डिफेंस पर्सनल have died under mysterious circumstances. और इसमें मैं 2 का बताऊंगी. जो हमारी अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन थी, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन हमारी, उसके चीफ इंजन रूम ऑफिसर एंड चीफ इंजीनियर, उनको पॉइजन करके उनकी डेड बॉडी को विशाखापट्टनम रेलवे ट्रैक्स पे रख दिया गया था कि ताकि ट्रेन आए और उनकी डेड बॉडी पे चले जाए और पता ही ना चले कि उनका मर्डर किया गया है. सेकेंडली, एक सीनियर साइंटिस्ट ऑफ कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनकी डेड बॉडी मिली थी काली रिवर में. एंड अगर कोई सुइसाइड करता है तो बॉडी डाउन स्ट्रीम जाती है, लेकिन उनकी बॉडी मिली थी अपस्ट्रीम फंसी हुई. सो दीज आर 2 क्लियर कट केसेस ऑफ मर्डर एंड द पुलिस क्लोज्ड ईच केस. इसी तरह के 9 से 10 केसेस हैं. इसके अलावा कई सारी टेक्नोलॉजीज की चोरी हुई है, कई सारे हनी ट्रैपिंग के केसेस हुए हैं, फॉल्स हनी ट्रैपिंग केसेस, जिसमें कि क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी नंबी नारायण वाज ट्राइंग टू डेवलप, उसमें उन्हें फंसाया गया एंड वी वर सेट बैक डिकेड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी. तो ये सारा कुछ इसमें कवर्ड है. Coming to General Chaturvedi's main area of interest, which he wants to know about Nehruji's assassination attempts. Actually, Homi Bhabha had assured Nehru that by 1958 we can develop the atomic bomb. Now, none of our neighbors and none of the developed countries wanted us to gain this proficiency and this self-sufficiency. And even the cryogenic engine, it's a $500 billion I would say economy is involved in the launch of satellites. So they didn't want us to get it in the 1960s. So there were assassination attempts on Nehru from 1947 to 1956. Plus Homi Bhabha, the plane crash in which Homi Bhabha died was mysterious, and the second in command of CIA operations, that is Robert Crowley, he has gone on record and has given in writing that it was a hit by the CIA.
his death. Plus, Sarabhai died under mysterious circumstances. So all these things are there. Now we'll come to 1962, which is one of the topics of under discussion. Now all of us know about the 1962 war, but जो हमें नहीं पता है वो है कि 18th century में बहुत सारे चाइनीज आके इंडिया में सेटल्ड हो गए थे इन द नॉर्थ ईस्ट, दीमापुर, शिलोंग, दार्जिलिंग, कैलकाटा, और कई पैदा हुए थे. देवर एक्चुअली दे बिलीव्ड कि हम इंडियंस हैं. दार्जिलिंग स्कूल में वो इंडियन नेशनल एंथम गाते थे. नाउ 1962 में क्या हुआ, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जितने भी ये चाइनीज इंडियंस थे इनको बोला गया कि आप अपनी दुकानें बंद करो, अपना बिजनेस वाइंड अप करो और जाओ यहाँ से. अब उनका तो घर यही था इंडिया में. Then what happened was that the police in the night they started arresting all these Chinese Indians, और सब जगह से, शिलोंग, दीमापुर, कैलकाटा से इनको अरेस्ट किया गया रातों रात विदाउट एनी ट्रायल. दे वर पुट इन जेल. उसके बाद एक ट्रेन में उनको बिठाया गया. उस ट्रेन के बाहर लिखा हुआ था एनिमी, एंड दैट ट्रेन टुक देम टू देवली इन राजस्थान. नाउ देवली राजस्थान में क्या था, देवली में 1942 में ब्रिटिशर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक डिटेंशन कैंप बनाया था, एक POW कैंप, जिसमें कि जर्मन्स, इटालियंस, इन सब वॉर क्रिमिनल्स को रखा गया था. इनफैक्ट नेहरू जी वॉज ऑल्सो इंटर्न्ड इन दिस देवली प्रिजन कैंप. तो रातों रात 4 दिन की वो ट्रेन जर्नी थी. बच्चों को, चाइनीज बच्चों को सेपरेट कर दिया मदर्स से, फैमिली सेपरेट कर दिए. जिस भी स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी उस पर स्टोन पेल्टिंग होती थी, और इनको ले जाया गया. और 1962 में मोर देन 3000 चाइनीज इंडियंस प्लस टिबेटन्स को इस जेल में डाला गया. नो ट्रायल डन, एंड द वॉर लास्टेड barely 20 days. And would you believe the last Chinese Indian was released in 1968? So from 62 to 68 these Chinese Indians were there. और उसके बाद जब वो वापस आए तो ना उनके घर थे ना बिजनेस थे, और कुछ उसके बाद कनाडा चले गए, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ वापस चाइना चले गए. तो ये भी एक एस्पेक्ट है 1962 वॉर का जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है. तो मैंने इस बुक में ऐसी चीज़ें इसलिए कवर की हैं टू अंडरस्टैंड कि एक तो वॉर है जो बॉर्डर पे हो रहा है, और एक वॉर है जो हिडन है, जो कोवर्ट है. आवर डिफेंस एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स आर अंडर अटैक, कोवर्ट अटैक. सो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टॉक अबाउट इट. I hope I've kept to 2 minutes. Thank you, ma'am. She barely, passed that examination. She submitted, paper and back. Right? Okay, so I have requested Mr. Man Singh to, provide us time for just a question or a couple of questions each to both the authors, please. So, audience, anyone, any questions? Yes, please. Hello sir. Sir, my name is Dhananjay Singh. I am from Ram Janmabhoomi, Ayodhya. One question for you, sir. सर, डिफेंस में जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनमें क्या है, जैसे जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें बहुत टफ सिचुएशंस होती हैं. एक नॉर्मल सिचुएशन से यहाँ पे भी गोली चलने लगे, सब लोग डर जाएंगे, सब लोग भागने लगेंगे. लेकिन उसी सिचुएशंस में जो सोल्जर्स होते हैं अपनी जान की बाजी लगाते हुए आगे बढ़ते हैं. सर, ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? ये सर आपसे पूछना था. इसका एक बहुत सिंपल जवाब है. ये मोटिवेशन आता है हमारी ट्रेनिंग से. और कोई भी जवान जब किसी ऑपरेशन में जाता है तो वो, अब बैठ जाइए प्लीज़, तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, मेरे घर वालों को क्या होगा एंड ऑल दैट. देयर नो टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दैट. वो सोचने का टाइम नहीं होता. आपके पास एक मिशन है, आपको एक काम दिया गया है, उसके लिए आपको इंडियन आर्मी ने या इंडियन एयरफोर्स ने या इंडियन नेवी ने आपको उस काम करने के लिए सही तरीके से सक्सेसफुली आपको ट्रेन किया है. और उस टाइम पे, उस वक्त पे, इट इज़ ओनली दैट ट्रेनिंग विच मैटर्स. तो आप अपने डरों के बारे में सोचते नहीं है. यू नेवर थिंक अबाउट. सी, आई हैव नेवर फॉट इन अ वॉर इन माई लाइफ. मैं अपने ज़िंदगी में कभी वॉर में डायरेक्टली कभी एंगेज नहीं किया. सो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन जो आपने मुझसे अभी पूछा. यही क्वेश्चन मैंने अपने सीनियर से पूछा था जो वॉर्स में गए हुए हैं, एंड दे ऑल टोल्ड मी द सेम थिंग,
that you don't think about anything else at that point of time. उस टाइम पे आप कुछ और नहीं सोचते हैं, बस आपके पास जो मिशन है, जो काम है, वो काम कैसे आप सक्सेसफुली करेंगे उसके बारे में सोचते हैं, और उसके लिए जो आपको ट्रेनिंग मिली है वो ट्रेनिंग आपको वो एक्शन करने के लिए मदद करती है. तो इट मेक्स यू डू दैट. एंड जो हमारे पायलट्स वगैरह जाते हैं, लाइक एज आई सेड कि 30 सेकेंड्स में के इंटरवल पे टेक ऑफ होता है 3, 4, 5 एयरक्राफ्ट. अभी एक मूवी आई थी स्काई फोर्स करके. सो ये लोग पाकिस्तान में गए, सरगोदा के ऊपर बॉम्ब गिरा करके आए 1965 वॉर में. नाउ दे वुड हैव थॉट कि हम वापस आएंगे, नहीं आएंगे, पाकिस्तानी एयरफोर्स की जहाज हमें मार गिराएंगे या एंटी